morning to all the dignitaries, guests, faculty, and attendees. On behalf of Vivekananda School of Engineering and Technology, I would like to extend you a very warm welcome to this knowledgeable and encouraging event. My name is Bhumika Jain and I am from Artificial Intelligence and Data Science. I would now take this opportunity to acknowledge and greet our Honorable Vice Chairman, Mr. Vineet Vats Sir, respected Director General Dr. Ashwini Kumar Sir, who is not present amongst us due to some urgent commitments, or Director of BTech Programs, Professor Goldie Gabrani Ma'am, our Head of the Department, Professor Dipali Varmani Ma'am, and Controller of Examination, Professor Nidhi Sharma Ma'am. We are here in the presence of a remarkable inspiration, Padma Shri Dr. Harsh Kumar Sir, who will be enlightening us in today's session with his profound knowledge and wisdom. Dr. Harsh Kumar Sir, who is currently the Director, Glaucoma Services, Center for Sight, and the Senior Consultant Ophthalmology, was awarded with Padma Shri by the President of India on 30th March 2015. He was awarded with gold medal during his MBBS from AIIMS, Delhi. He then pursued his MD from Dr. Rajendra Prasad Center at AIIMS, New Delhi, and yet again he procured a gold medal. The result of his continuous and dedicated efforts are evident. Sir has innumerable publications in index journals, books, and several chapters to his credit. Being a prolific teacher, Sir has taken lectures throughout the country and abroad. He is a proud owner of numerous awards, including International Medical Scholars Program Award, with a fellowship at University of Illinois, Chicago, USA. Sir, we are all extremely overwhelmed and honored to have you among us today. Without further ado, let us now start our program. To express our gratitude towards our guest, I invite our Director of Programs, Goldie Gabrani Ma'am, to depict our love and appreciation. Now, sir, I invite you to come up on the dais and lead the talk. Is there anybody whose Hindi is not good enough? कोई है भी साउथ आउट से जिसको बिल्कुल हिंदी नहीं समझ में आती? क्योंकि I love speaking in Hindi. It's not that my English is poor, but over the years I've understood that people are able to understand much more if you are more communicative in their mother tongue. ठीक है भाई? So anyway, first, thank you very much, Goldie and Vats sir, for having me here, because it's such a pleasure to see such beautiful young crowd. क्योंकि हम लोग normally 70-80 साल के बुड्ढों से ही घिरे रहते हैं, ठीक है ना? And who are sick because of one thing or the other. So it's such a pleasure to see a crowd which is so beautiful and young, and you are doing so well. You are so lucky to be in such a premier and a wonderful institution. So I am really proud of all of you, and I think you do make your parents proud also. So I think थोड़ा ना इतना कोई वो सीरियस मैटर नहीं है, ठीक है ना? हम थोड़ी गप्पे ही मारेंगे कुछ चीज़ों पे. What is the most beautiful thing in life? बता भाई. Life itself. क्या बोला यार? ये थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा ना. Life itself. Very nice. और कोई? So the environment around us. Goose. Beautiful. For very nice. People. Okay, great. All the answers are right. For us as doctors, and for everybody, I think one of the most beautiful thing is hope. ठीक है ना? Because everything else, the moment you lose hope, you are in trouble. ठीक है? And as far as
रीचिंग अ पर्टिकुलर प्लेस तुम सोचते हो कि भाई ये कैसे मिल गया, पद्मश्री कैसे मिल गया, तो एक्चुअली नो बडी एवर एम्स फॉर दोज थिंग्स. पीपल हु एक्चुअली अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स डू नॉट एम फॉर देम. एंड जैसे एक बार शाहरुख खान का ही सुना था मैंने, तो उससे उसने पूछा कि सर आपने क्या सोचा था, मेरे पास कितनी गाड़ी होगी और किस पर बंगला. कहता है मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा. आई ओनली सॉ दैट माई नेक्स्ट शॉट इज़ परफेक्ट. सो इट इज़ लाइक दैट. ठीक है ना, यू हैव टू एम टू डू योर बेस्ट. ठीक है ना, दैट इज़ देन ओनली. क्या होगा वो तो किसी को भी नहीं पता है, बट येस यू कैनॉट. एंड आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम माई दिस थिंग. आई एम, अगर यहाँ सबका IQ किया जाए ना तो मेरा तुम में से आधे आधे में निकलेगा, शायद उससे भी कम में ही निकले. बट वेरी फ्यू ऑफ यू कैन बीट मी इन हार्ड वर्क. ठीक है ना, लक इज़ अ वेरी वेरी लकी थिंग. वेरी फ्यू पीपल गेट इट. येस, विद लक यू कैन डू एनी थिंग, बट वॉट यू कैन डू विद हार्ड वर्क is nobody can take that away from you. ठीक है, so please remember that nothing works like hard work. So अगर वो करोगे तो ज़रूर. and yes you have to follow your heart. तुम्हारा पैशन तो होना ही चाहिए भाई. अगर पैशन नहीं है तो फिर कहाँ जाओगे ये नहीं पता. ठीक है. and are there some other teachers here or you are the only teacher here? They are so young यार. मैं तो स्टूडेंट ही समझ के बैठा था. माई गॉड, आई एम सो इम्प्रेस्ड. तो आप मुश्किल हो जाती हो कि पढ़ाने में कौन ऊपर इधर आएगा कौन उधर बैठेगा. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू माई वाइफ, दो अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर, शी वॉज अ टीचर एंड शी वॉज वेरी पैशनेट. सो आई डू वॉन्ट टू टेल यू दैट वॉट यू आर डूइंग इज़ सो 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 इम्पॉर्टेंट. क्योंकि मैं पहले सोचता हो मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ यार, मैं रोज़ 10-12-15 मरीज़ ठीक कर देता हूँ. एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू गो टू हर कॉलेज, स्टूडेंट्स आके पैर छूते थे. ठीक है ना, वाई? एंड दे टोल्ड मी कि सर हम ना वो बसें तोड़ा करते थे और स्ट्राइक में पार्ट लिया करते थे. मैडम ने कान पकड़ पकड़ के हमको पढ़ाया, फोर्स्ड अस. एंड टुडे वन वाज अ बैंक मैनेजर, वन इज़ इन अ पायलट इन दिस थिंग. सो यू पीपल एक्चुअली आर actually leading generations. You know, you are a model for generations. So your work, I think, is way beyond our doctors. So kudos to all of you. भाई एक तालियां बजा दो अपने टीचर. इससे मुझे ये भी पता लग गया कि कौन टीचर है. तो anyway, so this was just an introduction to say what. एक और क्या चीज़ है कि हाउ वी, एक छोटी छोटी तुम्हें बात बताता हूँ. जैसे एक लेडी एडमिट हुई हमारे पास, गर्ल, यंग गर्ल, यू नो. एंड जब मैं इंस्टीट्यूट में था तो शी हैड ओनली वन आई. एक आँख से भी एक लाइन दिखती थी उसको. ठीक है ना. एंड शी द अदर आई वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ सम सर्जरी समवेयर. इट हैपन्स ऑल द टाइम बिकॉज देयर वाज सम इन्फ्लेमेशन इन दैट आई. वो कहती है सर मैं ना टच नहीं कराऊंगी ये आँख, आपको जो करना है करो, मेरी विजन बढ़ाओ, जैसे भी बढ़ाओ. हर प्रेशर्स वर हाई, वी वर इन ट्रबल. एंड देन इट वाज such and we remembered that just a few days back a similar girl actually hung herself, you know. So it was very 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 dicey. So we looked at all the literature. कहीं कुछ नहीं दिया हुआ था कि ऐसे केस में क्या करा जाए क्या करा जाए. But we thought, and then something came to me. Then we published a thing and we did something on her which actually helped to improve her vision, get her pressure down by a new laser technique which was never there in the world. ठीक है ना. तो क्योंकि there was a so that girl could then see. And another important thing for all of you is that if you do a good thing, you know, always remember it, because there will be very very dark moments in life. But if you have, बोलते हैं ना वो, catch a falling star and keep it in your pocket and save it for a rainy day. So those things really work for us, because there are so many patients who get improved like that. And then you want to, there will be bad moments, but then you want to keep it and say कि भाई चलो we have done something useful. So please keep doing good things in life. Okay. सारे अगर हम इस ग्रुप को लें तो उसमें सबसे कॉमन आई प्रॉब्लम क्या होगी, कौन बताएगा? और कोई?
और कोई? तुम सबको वो प्रॉब्लम है, अभी नहीं है तो हो जाएगी थोड़े दिनों में। अब बताओ। सॉरी, तो यार भगवान के विजन लॉस क्यों करवाता है यार? प्यार में अंधा होना होगा तो अलग बात है, उसकी एज है तुम्हारी, बट वैसे तो नहीं हो गया यार। अरे कम ऑन यार, ब्यूटीफुल। कौन बोला ये? क्या नाम है तेरा? सॉरी, कृतिका। तेरा नाम बड़ा डिफिकल्ट है यार भाई, याद रखना एक प्रेजेंट इसके लिए हो गया, ठीक है ना? 5 ही है मेरे पास, ठीक है? एक इसका हो गया भाई, नाम लिखो कृतिका का, ठीक है? ब्यूटीफुल। क्योंकि बिकॉज अब तो ये बता वाई। वेरी गुड। एक छोटा सा आइडिया जस्ट फॉर ये, ओके, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आई, ठीक है? तो ये क्या है भाई, कॉर्निया जो आगे वाला होता है, ठीक है ना? तुम लोगों के लिए मायोपिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैजिक, ठीक है ना, जिससे चश्मे उतर जाते हैं। और ये क्या प्यूपिल होती है, ये आयरिस है ना, जिसमें लोग कहते हैं वाह यार उसकी तो ब्लू आइज़ हैं, दैट मीन्स आयरिस इज़ ब्लू, ओके? बाकी हम सारे ब्राउन वाले टाइप हैं, ठीक है? और ये होता है लेंस, ठीक है ना, जिसमें कैटरैक्ट होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन दिस इज़ द, सो इट इज़ लाइक अ, द आई इज़ लाइक अ कैमरा, और ये है फिल्म विच इज़ रेटिना, और ये ऑप्टिक नर्व से हमारे फिर ब्रेन में मैसेज जाता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, ठीक है ना? सो दैट यू कैन रीड एंड दिस थिंग। सो वेरी ब्यूटिफुली कृतिका सेड दैट इट इज़ ड्राई आई। तुम सारे यार कंप्यूटर पे लगे रहते हो सारे टाइम, वहाँ से हटे तो कहाँ जाते हो? वो ब्यूटिफुल। तो 2 ही काम है, ठीक है ना? सो एंड तो एक मेरी गुजारिश है तुम लोगों से भाई, कि देख जो फालतू के काम है ना, क्योंकि तुम्हें आगे ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा काम कंप्यूटर्स पे या इवन मोबाइल्स पे, इवन फॉर वर्क यू विल हैव टू डू इट, ठीक है ना? तो प्लीज़ जो आलतू फालतू के काम है कट कर दो, बिकॉज द आईज कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग द कंप्यूटर और द स्क्रीन्स आर ओनली लिमिटेड, ठीक है ना? नहीं तो आगे जाके आई नो माई सम ऑफ माई younger colleagues who had to give up their computer work, give up, because they just couldn't carry on. The eyes become so bad. So please be very careful. जो थोड़ी ये सबसे इम्पोर्टेंट सारी लेक्चर का ना, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड अगला वाला ये है कि भाई ड्राई आई से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है ना? चल ये भी देखते हैं भाई किस किस को आता है। अब तेरा तो हो गया यार, और बोल भाई। हाँ भाई दसो। सॉरी, basically that you have to focus for 2 feet away for 2 minutes so that your eyes or at वेरी गुड, यू हैड एन आइडिया, बस लाइक ऑल इंडियंस तू 0 भूल गया, ठीक है ना? तो वो 2 फीट नहीं है, 2 फीट में अगर करेगा फोकस तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो बता दूँ तेरे को, बट गुड, योर अटेम्प्ट वाज राइट एंड योर माइंड वाज इन द राइट प्लेस। सो हम सारा काम जो कर रहे हैं ना, दैट इज़ ऑल रिलेटेड कि अगर ड्राई आई हो जाएगी तो ये काम हो ही नहीं पाएंगे यार, ठीक है ना? सो बहुत ये, अब ये वाली जो मैं वो कंप्यूटर यूज़ की बात थी, सो दिस इज़ व्हाट इट वाज, 20-20-20 रूल, ठीक है ना? नॉट बैड बट ठीक है। तो क्या होता है अब हर 20 मिनट के बाद, ठीक है ना, प्लीज़ ऑल ऑफ यू, बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड ऑन कंप्यूटर्स ऑल द टाइम, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए, ठीक है ना, वहाँ से भाग नहीं जाना है कि सर ने कहा था जी गायब हो जाओ, सिर्फ 20 सेकंड से टर्न अवे एंड लुक, वेयर विल यू लुक? इफ़ यू हैव अ स्काई टू लुक एट द स्काई, ठीक है ना, ठीक है ना, फॉर 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स कैसे पता लगेंगे? 1000 2000 बोलते हो तो 2 सेकेंड होते हैं मोटा मोटा, बट बेसिकली यू जस्ट वांट टू रिलैक्स। तो जिसको बिल्कुल रेगुलर यूज़ हो रहा है ना यार, प्लीज़ उसमें एक पॉपअप लगा दो कि भाई 20 मिनट हो गए, देन यू जस्ट टिल्ट, लुक फार अवे। वाई आर वी डूइंग दिस? क्यों कर रहे हैं हम? so that I can relax because I will really हाँ, फेयर इनफ, वी कैन रिलैक्स, ठीक है ना? तो जो ये अगर ये दोनों मसल्स ऐड कर रहे हैं आँख को सेंटर में लाने वाले,
तो हम पहले इस पे लगे हुए थे, यहाँ से निकले तो यार फ़ोन देख लिया, फ़ोन से निकले हाँ भी तेरा क्या हाल है, फिर इससे बात कर ली, तो वो मसल्स यहीं के यहीं रहे। एंड बाय द इवनिंग दे गेट सो टाइट दैट यू विल गेट हेडेक्स। तो इनवेरिएबली तुम्हारा अभी नहीं हुआ है तो होने वाला है वो चीज़। सो फॉर गॉड सेक गेट दिस इनटू योर हैबिट। एंड द सेकंड थिंग इज जो लिखा है उसमें ब्लिंक। क्यों? अब ये जो बताएगा अगला प्रेजेंट उसके लिए। ब्लिंक क्यों करना है भाई ज़्यादा? रुक जा पहले तूने क्या बोला? बोल दो जोर से यार। सॉरी। चलो गुड, ठीक है, इट इज़। हाँ आप और कौन था इधर? फोकस विल ब्रेक। हाँ बहुत कम टाइम के लिए होगा बट नहीं बेटे वो तो हो गया ना, 2020 में कवर हो गई वो बात। अब हम ये कह रहे हैं कि हम ब्लिंक ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। वो वाला जो फोकस वाली बात थी वो तो फोकस तो वहीं है तेरा भाई, फोकस तो कहीं नहीं गया, ठीक है ना? करने से एक हमारी आईज मॉइस्चराइज होंगी फॉर। हाँ वो उसने बोला। सो बेसिकली बिकॉज जब हमारे टीयर्स यहाँ पे होते हैं दे कीप इवेपोरेटिंग, ओके। सो अगर तुम ब्लिंक करते रहोगे तो द टीयर फिल्म फॉर्म्स अगेन एंड अब जैसे अगर शीशा को तुम जब वाइपर वाला काम होता है, सो इट इज़ मोर लाइक दैट। सो इट इज़ क्लीनिंग इट अप एंड गिविंग यू अ न्यू एरिया ओवर देयर टू लुक इनटू, ओके। एंड थर्ड थिंग क्या था? आई ड्रॉप्स। अब इफ़ यू आर रियली इन ट्रबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा काम है, तुम एस्केप नहीं कर सकते, तुम्हें ड्राई आई हो ही गई है, देन यू गिव लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स सो दैट 3-4 बार दिन में डाल लिया या कभी डाल लिया, सो दैट थिंग्स आर बेटर। लाइट प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। तुम लोग क्या करते हो, बंद करके ना सारे सब काम, सब सो गए तो यार मैं अब काम कर लेता हूँ, तो डोंट डू दैट। यू हैव टू हैव एन एम्बिएंट लाइट ओवर देयर टू, ठीक है ना? सो यू कैन नॉट जस्ट एस्केप फ्रॉम दैट। So the light should be good. Drink a lot of water. Good hydration will be good for your dryness. ठीक है ना? And AC के सामने नहीं बैठना है. Coolers अगर तुम ज़्यादा यूज़ कर सको तो better है. Okay, so this is the single most important thing for you people. भाई इसका एक इसके लिए जाएगा. क्या नाम है तेरा यार? खुशी सहाय। चलो भाई याद रखना यार प्लीज़, ठीक है ना? हाँ वैसे एक्चुअली तो एक इसको भी मिलना चाहिए, 0 ही रह गया था उसमें, ठीक है? ओके अब एक बार में कितनी ड्रॉप डालनी चाहिए आँख में? और कोई? चल बच गया, एक प्रेजेंट तो बच गया। ओनली 1, ओके। वाई? The capacity of eye is less than a drop. तो तुम उससे जो भी डालोगे वो भी बाहर जाएगी, स्किन को एलर्जी करेगी और पैसा भी तुम्हारा वेस्ट हुआ, ठीक है ना? सो बी वेरी केयरफुल, देयर इज ओनली 1 ड्रॉप, ओके। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ याद रखना यार, ठीक है? एनी ड्रॉप शुड नॉट बी एक्सेप्ट फॉर दिस मॉइस्चराइजिंग आई ड्रॉप। कोई भी ड्रॉप लंबे समय तक डालने से पहले प्लीज़ बी श्योर दैट द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड इट, ठीक है? होता क्या है, इसको एलर्जी हुई थी यार, उसने डाली थी, ठीक होगी, मैं भी डाल लेती हूँ। यू वोंट बिलीव, एवरी वीक आई सी 1 चाइल्ड हु गोज़ ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स टोटली ब्लाइंड, बिकॉज वो उसको एलर्जी हुई, वो स्टेरॉयड ड्रॉप दिए डॉक्टर ने, उसने डाले, पेरेंट्स ने कष्ट नहीं किया दिखाने का दोबारा, डाल डाल के वो ड्रॉप्स अल्टीमेटली ना वो दे completely they because steroids increase the pressure of the eye and the things become really bad. Okay, so please for God's sake be very very careful. And just by the way, steroids कहीं पे भी यूज़ हो, ठीक है ना? इवन क्रीम्स एक्ने के लिए जो लगाते हो तुम, ठीक है ना? कोई भी क्रीम किसी प्रकार की होगी तो दैट कैन गिव राइज टू ग्लोकोमा। सो स्टेरॉयड का यूज़ बहुत ही डेंजरस है किसी भी प्रकार में। और जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं ना, वो जो अपना लेते रहते हैं, तो आधे तो हम वो भी देखते हैं उनके बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि वो स्टेरॉयड खा के बॉडी तो बन जाती है और आँख चली जाती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है ना? मैं तेरे को भी बता रहा हूँ, कोई तू इंटरेस्टिंग डिस्कस कर रहा है यार, बता, मुझे भी बता यार क्या है, क्यों भाई? तो
एंड दिस इज़ व्हाट ग्लोकोमा इज़ लाइक, कि बिल्कुल ऑप्टिक नर्व ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। ओके, आईज़ जब हम धोते हैं, जब फेस हम धोते हैं तो आईज़, हाँ बेटे तू बता यार, जरा खड़ा हो, तेरे को ही कह रहा हूँ यार, जो गप्पे मार रहा था। हाँ बता भाई, आँख खोल के फेस धोना चाहिए क्या, क्यों? हाँ दे यार, दे इसको। वैसे अगर कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो आँख खोल के नहीं धोना चाहिए, वैसे तो हमें आँखें धोनी चाहिए। नहीं नहीं, सॉरी आई डेंट गेट यू। क्या? आँखें तो सर धोनी चाहिए। आँखें धोनी चाहिए खोल के। अच्छा भाई और बताओ। सर वाटर से अगर खाली धो रहे हैं तो आँखें खोल, मतलब कंप्लीटली खुली नहीं होनी चाहिए, पर हल्का सा पानी में आगे बाहर आना चाहिए। और कोई? हाँ भाई। गुड आफ्टरनून सर, आई एम शिवम शर्मा। और सर हमें आंखें खोल के हमें मुंह नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जो वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं कई बार, तो वो हमारी आंखों को इफेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आंखों के लिए प्रॉब्लम्स। वेरी गुड भाई, तीसरा इसका हुआ, ठीक है। 2 हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए? 5 ही हैं, ठीक है। 4 हो गए, नहीं है तो एक। बट वेरी गुड, ठीक है ना। तो बेटे आँख खोल के अगर धोएंगे ना तो उसमें हमारे जो अंदर आंसू हैं, टीयर्स हैं, उसमें क्या है? टीयर्स में बिल्कुल ठीक कहा, सोडियम, पोटेशियम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। और पानी के लिए जो इसने बोला वही है, पानी में, हमारे पानी में क्या है? जर्म्स हैं, क्लोरीन है, और कुछ नहीं है। एंड व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम? ड्राई आई। तो हम उसको और बढ़ा रहे हैं, पर ये तुम अपने पेरेंट्स को भी प्लीज़ बता देना, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल द टाइम, कि वो हम पुराने ज़माने के बातें थी भी आँख खोलो और धो लो। सो दिस इज़ अ बिग डिज़ास्टर, सो प्लीज़ डोंट लेट पीपल डू इट, ओके, बिकॉज दैट्स अ मेस एंड देन यू गेट मोर इनटू ड्राई आई। सबको ही वैसे ड्राई हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। और ये अगर कोई, चलो इसमें उतना भी नहीं जा रहा तो फिर भी, और यंगस्टर्स ज़्यादा तुम लोग देख रहे हो, बट अदरवाइज इतना तो नहीं है ना। बट पॉल्यूशन इतना है कि वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दैट। ओके, सो व्हाट इज़ अ कैटरैक्ट? वेरी गुड, सब आता है भाई इनको तो। So whenever this thing becomes whenever the lens becomes opaque, ठीक है ना, then it gives a, बिल्कुल ऐसे वाइट हो जाता है। बट दैट इज़ अ वेरी वेरी मेच्योर, आजकल वो ज़माना नहीं है। इट मच अर्लियर स्टेजेस वी डू अ कैटरैक्ट सर्जरी, ठीक है ना। तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके भाई? एक तो दूर से ब्लरिंग हो जाएगी, ठीक है ना, ब्लरिंग हो जाएगी। ब्लरिंग दूर से दिखता नहीं है, कई बार वो उसमें असल में वाटर मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं, तो अगर तुम चांद को देखो तो यू सी मल्टीपल इमेजेस। So these are some of the common things. Whatever you used to see previously in the night, you are not able to see. So all these things happen. And causes क्या होते हैं कैटरेक्ट के भाई? देखो वैसे तो जेनेटिक ही होता है, कुछ लोग, होना सबको ही है, किसी को, हाँ राइट। So somebody will get it at 50, somebody will get it 90. But youngsters में क्यों हो जाता है कई बार? चोट लगने से, ठीक है ना। So if there is trauma और देर इज़, तुमने स्टेरॉयड खाए, स्टेरॉयड से भी हो जाता है, ठीक है ना, या कोई इन्फेक्शन हो गया, या कोई चोट लग गई, या कोई सर्जरी हुई, तो कोई भी ऐसे हो तो यंगस्टर्स में फिर वो कैटरेक्ट हो सकता है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज स्टिल एज रिलेटेड फिनोमेना। सो ट्रीटमेंट, नाउ ट्रीटमेंट में इज समथिंग दैट यू गाइज विल ऑल्सो बी एबल टू contribute later, because we actually, हमारा दिमाग ना सिर्फ काम करने में चलता है, but we have very little idea about AI and how things are improving but they have improved tremendously. जो सबसे पहला कैटरेक्ट की सर्जरी थी वो सर्जरी ही नहीं थी, मतलब वो जब ये दिखाया था ना वाइट कैटरेक्ट, तो वो बाबा जी के पास जाते थे, वो ऐसे दबा देते थे आँख को, सो द कैटरेक्ट वॉज वीक, इट यूज टू फॉल बैक, और उसको एकदम विजन आ जाती थी, तो वो तो भाई बड़ा क्या बड़ी बात हो गई, ठीक है ना। बट नाउ देन, अभी 20 साल पहले तक भी हम खूब बड़ा सा एक इंसिजन बनाते थे,
जब एम्स में मैं कैंप करने जाता था इधर उधर, खूब बड़ा सा हम इंस्टीट्यूट बनाते थे, उसमें से लेंस को निकालते थे, 6-7 टाँके लगाते थे, ठीक है. बट दैट पार्ट इज़ गॉन नाउ. So now, and that thanks to all people like you who have been working in the AI and the technology which has improved so much. So what now we do is basically that we get एक बहुत ही छोटा सा incision बनाया जाता है. उस छोटे से incision से we go in and suck out the entire lens matter and put a foldable lens over there. So that is another story altogether. And now it is all being done without the blades. So इसी में सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, वी वर रियली स्केयर्ड द फर्स्ट टाइम दिस फेमटो लेज़र केम. तो फेमटो लेज़र में क्या होता है, मतलब कुछ लोग रोबोटिक या कुछ भी बोलते हैं उसे, ठीक है ना. तो रोबोटिक वगैरह में क्या होता है कि द मशीन जस्ट सेट्स अप ओवर देयर और वो इंसिजन्स भी बना देती है जो हम पहले ब्लेड से बनाते थे, और अंदर ही वो लेंस को पूरा एमल्सिफाई कर देती है. एंड देन तो वी वर सो स्केयर्ड, हमने कहा यार कल तो कोई रिच आदमी ना अपनी मशीन खरीद लेगा, और अभी ये स्टेप तक आ गया और तुम लोग ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम कोई ऐसी भी चीज़ बना दोगे जो उसमें जाके अपने आप ही सक भी कर लेगी सारा. एंड देन दे विल प्रोबब्ली हैव अ फ्लूइड लेंस विच दे यू विल जस्ट इंजेक्ट. सो आदमी तो ख़त्म ही हो गया, मतलब द डॉक्टर इज़ गॉन, ही इज़ नोवेयर इन द पिक्चर. सो वी आर रियली स्केयर्ड, बट लकीली अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. बट यस, डू यू थिंक दैट विल टेक अवे द इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉक्टर? कोई नहीं, मतलब it doesn't matter me, but the point is that human touch is always so much more important, ठीक है ना. That somebody will have to decide for you whether that surgery has to be done or not. So that part luckily cannot go away. And तो just by the way, 3-4 दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट डे था यार. कौन सा डे था, कोई बताएगा? वेरी वेरी नाइस. आई थिंक हम सबको थोड़े दिनों में क्योंकि आजकल जो सबसे कॉमन ब्रांच है, जो किसी से पूछो यंगस्टर से, हम डॉक्टर से पूछते हैं क्या लेना है भाई, साइकोलॉजी सर. सो ही इज़ वेरी करेक्ट. मोस्ट ऑफ अस आर नाउ, एंड आई एम प्राउड ऑफ द पीपल दैट यंग पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड सेइंग कि येस सर, मतलब वी आर टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट सर, देख लेना कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उससे या क्या है. सो वॉट आई वॉन्टेड टू से वॉज दैट प्लीज़ यू हैव टू टॉक टू पीपल. आई थिंक स्पेशली द यंगर जनरेशन इज़ सो मच मोर ऑन द व्हाट्सएप, ये वो, तुम्हारे इतने हर तरह के चैट ग्रुप्स. यू आर नॉट, मैनी ऑफ यू आर नॉट इन द रियल वर्ल्ड. सो प्लीज़ ये बात याद रखना. हम अभी बात ही कर रहे थे व्हाट्सएप से भी कि द बिगेस्ट, लेटर व्हेन यू रियलाइज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर हैप्पीनेस, यहाँ से किसी ने हैप्पीनेस भी बोला था, इज़ हाउ मेनी रिलेशनशिप्स यू हैव गॉट. ये रिलेशनशिप नहीं कि वो लड़का कैसे मेरी 6 गर्लफ्रेंड्स हैं, बट आई एम सेइंग relationships with people as a whole. How many friends, how many actual friends you have, how many people you have whom you can talk to. So we are still lucky to be in India because you have so many people to talk to. ठीक है ना. अभी भी कहीं कहीं जॉइंट सिस्टम है फैमिली का, नहीं तो फैमिली मिलती ही है, एंड यू कैन ब्रिंग अप एनीबडी एंड एवरीबडी एंड टॉक टू देम, ठीक है ना. सो नहीं तो अमेरिका में हाल देखो क्या हाल है, क्या हो रहा है वहाँ पे. Almost everybody is going to a shrink. Shrink is a psychologist, ठीक है ना. तो वी आर लकी, यहाँ तो बाहर निकले तो चलो यार चपरासी से बात कर ली, इससे बात कर ली, पान वाले से बात कर ली. सो वी हैव प्लेंटी ऑफ पीपल टू टॉक टू. सो वी आर लकी दैट वे. सो प्लीज़ डू रिमेंबर दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिलेशनशिप्स. ठीक है. तो ये पुराने ज़माने का कैटरेक्ट, ये नए ज़माने का कैटरेक्ट करके, मतलब यू कैन सी दैट द पेशेंट जस्ट गेट अप एंड. तो दीज आर थिंग्स दैट एक्चुअली, वही तुम्हारी टेक्नोलॉजी और एआई वाली बातें हैं सारी कि हमें तो समझ में भी नहीं आता, बट दे जस्ट टेल अस कि भाई सर यहाँ है, यू कैन सी द एंटायर कैटरेक्ट एंड यू कैन जस्ट सी हाउ थिंग्स विल बी कट ऑफ एंड बिल्कुल उसका एकदम यू नो दे मेक इट इनटू सो मच ऑफ अ small this thing. Only laser is going in, nothing else is going in, and it just pulverizes the whole lens. And once the lens is pulverized, it can just be, you can just go through a very, very small incision which the laser has already made, and the whole thing can be just sucked out. So this is a blade which is just opening up the section which has already been made. ठीक है ना, कोई बेहोश तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं, we have had people who seeing a drop of blood simply fall down. So I was not wanting to show the whole thing, but अब आ गया है तो देख लो.
So that is how, with that very, very small probe that is going in, that is a 1.8 millimeter probe. And then we suck out the whole thing. And once that whole thing is sucked out, you just inject a foldable lens over there. So let me see whether the lens part is there or not. Okay, this is, okay, I think it's too long. I think we can just skip that. But these are the type of lenses that we have. ठीक है ना. अब वही बात होती है कि जो पुराने ज़माने में सिर्फ हम लेंस को निकाला करते थे, वो मोटा चश्मा लगा देते थे ऊपर. तो एक स्टूडेंट खड़ा था एक डॉक्टर के साथ, उसने कहा कि सर आपने निकाल तो दिया बट डाला नहीं उसके अंदर कुछ. एंड देन सडनली रियलाइज्ड कि दैट इज़ अमेजिंग. सो दैट स्मॉल थिंग रियली हेल्प्ड हिम टू मेक द फर्स्ट इंट्राऑक्यूलर लेंस. दैट वाज रिडले. सो स्टूडेंट्स हमें भी आज भी कई बार सिखाते हैं. यू नो दे टेल अस. सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ टेलिंग योर टीचर्स कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था क्या. या यू नो, बिकॉज दैट समटाइम्स गिव्स देम सो मच आइडिया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. सो नाउ देयर आर 2-3 kind of lenses, and this again is technology, and it is advancing, and I hope that one of you one day helps to make a fluid lens totally, which doesn't need all these things, because we have now monofocal IOLs जो एक जगह फोकस करते हैं. ठीक है ना. These are the cheapest ones, but then they are extended focal IOL lens which will एक intermediate distance भी तुम्हें दे देता है. And then later there are multifocal IOLs which will cover all kind of distances. तो वो it is very much like that, but it's not a fluid thing. It is still fold करके उसको अंदर डाला, and then you can actually focus at any point of anywhere. So these are all the technological advances which are coming up now. बताओ भाई, लैजिक किसी ने करवाया है यहाँ पे? चलो नहीं पूछूंगा, इट इज़ नॉट अ गुड क्वेश्चन टू आस्क. बट व्हाट इज लैजिक? हाँ, परमानेंट. दैट्स राइट, दैट्स अ गुड आइडिया. तुमने क्यों नहीं करवाया भाई? तेरा कितना नंबर है? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करवाया? हाँ भाई. ओके, सो कोई बताएगा कि कितना नंबर तक लैजिक काम करता है, या कितने वो निकाले जा सकते हैं, कितना मायोपिया ठीक किया जा सकता है? हाँ भाई, एनीबडी? ओके, दैट्स अ गुड गेस, but by and large pretty much from 1 diopter to 6, 7, 8 diopters when can be easily taken out. उसके बाद there are certain different procedures to take out the glasses, but yes, for youngsters this is the biggest boon. And the bigger thing is that now even in forces, even for pilots, they have allowed that you can actually get a LASIK done and we will still give you a job if you are perfect otherwise. So that's really wonderful. So basically वही होता है, क्योंकि मायोपिया में ग्लोब लार्ज है, तो जो कॉर्निया वाला पार्ट है उसको हम रीफैशन करके we get the eye to focus where the large globe is. Okay, so it is classically called laser in situ keratobiliosis. So पहले क्या होता था, एक ब्लेड आता था जैसे लेफ्ट साइड पे, एंड वी यूज टू कट विद अ ब्लेड, बट उसमें कई प्रॉब्लम्स होती थी. कॉर्निया कई बार ज़्यादा कट जाता था, या वो फ्लैप पूरा कटता ही नहीं था. तो अगेन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नाउ दैट एंटायर थिंग इज डन बाय लेजर. सो नाउ वी हैव व्हाट इज नोन एज अ फेम्टो लेजर. तो उसमें जो फ्लैप है वो भी लेज़र से रेज होता है. एंड तो कोई अब कभी बाई चांस तुम लोग जाओगे, वो पूछेंगे भाई ब्लेड वाला कराना है कि लेज़र वाला कराना है. अब लेज़र से भी एक ऊपर आ गई है टेक्निक विच इज़ नोन एज अ स्माइल टेक्निक. इसमें जो नीचे पूरा कॉर्निया का पार्ट निकालना है, वो सारा का सारा सैंडविच ही लेज़र से हो जाता है. सो यू जस्ट मेक अ स्मॉल इंसिजन, गो इन, टेक दैट आउट. तो जो पहले फ्लैप कटने से दिक्कतें होती थी वो कुछ भी नहीं होती. सो इट इज़ इंडीड अ वंडरफुल प्रोसीजर. ऑब्वियसली इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव. क्या डिसएडवांटेज हो सकता है लैजिक का भाई, कोई बताएगा? बताओ यार, एक कुछ तो बताओ. परमानेंट ब्लाइंडनेस के चांसेस प्रिकॉशन. हाँ, परमानेंट ब्लाइंडनेस तो यार इट्स अ फार थिंग, यू नो. अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो किसी भी सर्जरी में हो सकती है. रेटिना पे डैमेज आता है.
हम आगे है ना कॉर्निया पे, तो रेटिना तक तो पहुँचे ही नहीं, कॉर्निया पे हैं आगे, तो क्या हो सकता है, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली वी आर रीशेपिंग द कॉर्निया बाय टेकिंग सम पार्ट ऑफ द कॉर्निया आउट. So what can happen is that it can become thin. So if it becomes thin, then it can protrude. If it protrudes, then the shape is lost and everything can go haywire. तो ये इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा हाई नंबर में नहीं करते, क्योंकि द अमाउंट ऑफ कॉर्निया दैट यू हैव टू टेक आउट इज़ वेरी हाई. सो दैट इज़ नॉर्मली नॉट डन. और अगर बहुत हाई नंबर होता है तो वी आर एक्चुअली जो नॉर्मल लेंस हमने दिखाया था उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं. उसमें तो तुम -11, -12, -14 तक के नंबर को ठीक कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इट्स अ मोर ट्रिकियर सिचुएशन बिकॉज यू आर एक्चुअली गोइंग इन टू दी आई. ये बाकी का सारा सेगमेंट ऊपर आई के ही हो रहा है. सो वी आर मच सेफर दैट वे. अब चीज़ आती है ग्लॉकोमा. ठीक है ना, ये बहुत dangerous बीमारी है because people don't come to know about it at all. That's why we call it a silent thief. And almost 1 in 8 people above 40 years of age may be suffering from it. So what happens is that eye में normally एक जगह से water बनता है, ये जो हमारे ciliary body है, और ये बाहर जाता है कुछ छेदों से. ठीक है ना, तो किसी कारणवश जेनेटिक कारणों से ये छेद बंद हो जाते हैं एंड देन द प्रेशर राइजेज एंड इट हिट्स द ऑप्टिक नर्व पीछे. ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व को हिट करता है एंड देन यू कैन ग्रेजुअली बिकम ब्लाइंड. द प्रॉब्लम इज इसमें कोई भी सिम्टम नहीं होते. सटल सिम्टम्स होते हैं कि दे मे बी कलर्ड हैलोज अराउंड लाइट. ओके, बिकॉज प्रेशर बढ़ता है तो वो बबल्स कॉर्निया में आ जाते हैं पानी के. They act like prisms, so you can see colored halos, and there could be a sudden attack at times of pain, etc. Normally एक आदमी के चश्मा कब लगता है, मतलब नियर डिस्टेंस का नहीं, बट पढ़ने के लिए चश्मा जैसे आदमी एज होता जाता है तो लगता है. कोई बताएगा क्या एज है वो? सॉरी, नहीं, एज किस एज पे मेरे को चश्मा लगा होगा पास का, मेरा वैसे दूर का बिल्कुल ठीक था, पर पढ़ने के लिए हाँ. सो अराउंड 40 पे सबको वो रूल है कि पास का चश्मा लगेगा. ठीक है ना, तो इफ़ द नंबर नॉर्मली उसके बाद 3-4 साल बाद फिर पहले +0.5 लगा, फिर +1 हो गया, फिर कुछ और हो गया. सो ग्रेजुअली द नंबर कीप्स इंक्रीजिंग. इफ़ द नंबर इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली, दैट्स अ साइन दैट समथिंग इज़ नॉट राइट. सो ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये अपने पेरेंट्स को प्लीज़ एक बार बता देना कि भाई ये सब हो सकता है, या हेडेक्स होने लगें, या जो तुम्हें पहले रात में दिखता था अब वो नहीं दिखता है. सो दीज आर ऑल अर्ली साइंस. और वो कहें यार पता नहीं मैं जा रहा था ये टक्कर लग गई साइड से, और ही ड्राइव कर रहे हैं तब कोई एक्सीडेंट हो गया. सो उसमें कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. यू कांट सी फ्रॉम द साइड्स एंड यू डोंट इवन कम टू नो, बिकॉज 2 आँखें हैं ना तो दूसरी आँख कॉम्पनसेट करती रहती है. बट समवेयर और दी अदर यू विल गो एंड हिट समबडी, और समबडी विल हिट यू फ्रॉम द साइड्स एंड यू विल नॉट नो. सो दैट इज़ अ रीज़न. दैट मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग डेवलपिंग ओवर देयर. सो देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन. क्योंकि अगर तुम एक आँख बंद करोगे तो देखोगे देयर इज़ एन एरिया विच यू कैन सी. ओके, दैट इज़ द विजुअल फील्ड. तो अगर वो बाई चांस कंस्ट्रिक्ट हो रही है, बल्कि हमेशा यार ऐसे करके ना अपना देख लिया करो 3-4 महीने में. कई बार अगर ऐसे कहीं बाई चांस गायब हो रहा है कुछ एरिया, देन यू नो दैट समथिंग इज़ नॉट राइट. ओके, एंड बहुत सिंपल होते हैं कि हमारा स्लिट लैंप होता है, उस पर बिठा के उसको टेस्ट किया जाता है, एंड प्रेशर लेते हैं हम लोग, अंदर से एंगल देखते हैं, और ये जो फैलाव मैंने बताया ना, तो वी डू अ विजुअल फील्ड विच विल टेल यू दैट एवरीथिंग इज़ राइट. But if it is not right, then half of it becomes black, and then you know things are not okay, and then you can. So who is most likely to get it is people who are having diabetes, hypertension, but most important, anybody in the family. Please remember, if anybody in the family is having glaucoma, then you are also going to suffer. There are 10% more chances than a general population that you may suffer from it. So please be very careful, and the only way we can, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है, जहाँ पे हमने पकड़ लिया उतना हम रोक सकते हैं, उससे उसको क्योर नहीं कर सकते जो डैमेज हो गया. नर्व्स में कभी भी डैमेज हो, चाहे वो स्पाइन हो, चाहे आई की हो,
it is irrecoverable as of now. Yes, stem cell का कभी कभी जो आएगा तब आएगा, पर not as of now. So the earlier we detect, the better we are off. ठीक है ना? तो ये कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जो करके हम लोग, and simple things होती हैं like drops, lasers. Sometimes it is complicated, we may have to do surgeries. But most important thing is hope. अब AI में लिख के लाया था, वो तो बेकार है तुम लोगों को बताना, मुझे पता लगा भाई you people are all wizards in AI. But yes, हम लोगों को कैसे फ़ायदा हो रहा है? So digital health and telemedicine improve the efficiency and accessibility of हमारी जो already existing eye services हैं. अब कैसे सिंपल सी चीज़ें हैं कि मेरा फ्रेंड कहता है कि यार ये ऐसे ऐसे हो गया इस पेशेंट को, मैंने कहा अच्छा भाई चल व्हाट्सएप पे भेज दे. दैट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग. सो ही विल सेंड मी सम फोटोग्राफ्स विच आई कैन देन कमेंट ऑन कि भाई इसमें ये मेडिसिन मिलनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए. तो ये सब बताना बेकार है क्योंकि आई थिंक यू नो बेटर देन मी. बट ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या यूज़ है? सबसे बड़ी बात है कि इवन फ़ोन रिलेटेड वी नाउ है ऐप्स. सो एक आदमी बिल्कुल पेरिफरी में बैठा है और उसने वहाँ पे फ़ोन से एक उसके अंदर का फंडस का फ़ोटो भी खिंच जाता है. सो इफ़ यू कैन टेक अ फोटोग्राफ लाइक दिस जस्ट यूजिंग योर ऐप एंड मे बी अ स्मॉल डिवाइस ओवर देयर, then right in the peripheral villages, because most of India still 70% of India is still living in inaccessible areas to a great extent. तो वहाँ से उसने लेके अगर भेज दिया, then the person's senior person can keep sitting and seeing कि भाई क्या करना है, इसमें क्या करना है. So diabetic retinopathy, glaucoma, ये सारी चीज़ें हैं जो एक जूनियर डॉक्टर को नहीं समझ में आएगी. He can just take this. So we need all of you to work very very hard. To be very frank, I'll tell you, द फ्यूचर. कोविड में एक ही आदमी का चल रहा था, बाकी सब तो बैठ गए थे. कौन था वो? डॉक्टर. ठीक है ना? सो दैट हैज़ टोल्ड यू दैट हेल्थ एंड मेडिकेयर आर वन ऑफ द थिंग्स विच आर एवर लास्टिंग एंड दे विल बी इम्प्रूविंग एवरी डे. सो इफ even when you're choosing your career and all, if you can choose something which will help benefit the medical side, it will be really great for us, because not only that, and you will get a career which will be really really important, because so much more advancement is required in that. What is the biggest hitch? ये जो मैंने बताया कि पेरिफेरी से हम भेज देंगे, what is the biggest hitch in that? नेटवर्क. पेरिफेरी में क्या, यहाँ दिल्ली में ही कितनी बार हम लोगों के पास नेटवर्क नहीं आ पाता पूरा अच्छे से. So you can imagine that is the biggest problem that we are facing. So, or quality of training sets. Most important thing is कि the data which AI में तुम जो data उसमें feed कर रहे हो वही तो data निकलेगा ना. तो garbage in garbage out, तो बड़ी बात सीधी सी बात है. So that is why you have to really be careful about what is being fed in, and if good things are being fed in, then we are happy. And definitely large data sets are required, which may take a lot of time, plus cost is a very very big factor. And ethical challenges, because you know, because तुमने कुछ बना दिया, उसने पेरिफेरी से भेज के ये डायग्नोसिस करके उसकी दवाई शुरू कर दी, but ultimately if that is not right, then who's at fault? Are you guys who have made that particular AI at fault, or he is at fault? We don't know. So it is definitely a wonderful tool, and we really hope that you guys will give something great to us. But we are scared that I hope you don't make things which will make us useless. ठीक है ना? Because we are really really worried. But I still feel, at least for medicine, that is a far way around. But it is already happening in at least a lot of my friends or juniors who are in IT. They are very worried because so many more newer programs are coming. वो कहने लगे एक नया प्रोग्राम आ गया और 10 लोगों को निकाल दिया. Now that program is doing the work of 10 people. So that is, but that is what is the only permanent thing in life. Beautiful. किसने बोला ये? ये इसका अभी 5th वाला. The only thing permanent in life is change. ठीक है ना? Because so we can't, even at this age, I have to learn new techniques to operate. So तुम्हारी तो भी बात ही क्या है यार? You have to keep learning, keep learning, keep learning. Because every day you will improve. Any seminar you attend, you will pick up 2 things. हो सकता है एक ही बात मिले, पर कोई नई चीज़ मिलेगी.
So you widen your horizons and you see what more you can achieve. A machine can do the work of 50 ordinary men, but no machine can do the work of one extraordinary man. So ये याद रखना भाई. But you have to move to the new. And most important, which I told you, was you have to maintain relation. And two things that I've learned in my life, which will ultimately help you, is give and forgive. ठीक है ना? That will be beautiful. Thank you very much for your kind attention. हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है तो बता दो. Thank you so much, sir, for taking out the time and sharing such great knowledge. Now the session is open to questions from students. 5 थे. हाँ बोलो बोलो, पूछो. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hi. My name is Tejasvi. हाँ बोल बेटे. Sir, I wanted to ask, like we see that now there are computer classes also coming, which say that it prevents us from blue light, and that it improves our eyes. So is it true that? हाँ नहीं, वो blue. Yeah, you are right. There are blue glasses and there are so many other things, but we are not really sure. Because to be sure about that, whether they are helping, will take long time for us to know. But sir, So there may be a marketing gimmick also. Yes. So Yes. that is my question. That is it a marketing gimmick? It could be. It could very well be a marketing gimmick. We cannot at this point of time be very sure about it. Recently, I have read an article जिसमें कि ciliary muscles के बारे में बताते हैं sir. So there is constantly मतलब contraction होता है, relaxation होता है. Even though we put on glasses, वो प्रॉब्लम तो सर कांस्टेंट है. अगर हम ड्रॉप भी डालें तो भी प्रॉब्लम वो कांस्टेंट है, क्योंकि मेरे को ग्लासेस लगे हुए हैं. दो आई फील आफ्टर रिमूविंग माई ग्लासेस कि वो प्रॉब्लम कांस्टेंट. तो उसके लिए अभी एआई में भी रिसेंटली निकला है कि उसके लिए कुछ लेंसेज ऐसे बना रहे हैं, कुछ नर्व्स को कुछ कर रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट एक्सियंस को जॉइन कर रहे हैं. तो सर उसमें क्या मतलब? हाँ, they have still come up, and we just had a lecture right now from the company who's making these kind of glasses. Okay, which said that they will completely relax the eyes. But again, it has just come in. You know, unless something is really tried out for 5-10 years, you just can't be sure whether actually it will work out or not. सर मैंने And there are drops now, myopin eye drops, which can be used in children especially, जिनका अगर progressive myopia है, then we have found that if you use those drops morning, evening, then they can be, the myopia can be stopped or controlled to a great extent. हाँ. अच्छा. हाँ हाँ. हाँ बोल बेटे. Sir, is there any biomark towards the glaucoma that tears what tears could contain, could be the biomark? Yeah, that's an excellent question, but unluckily we don't have anything like that as of now. And there are a number of genes which can be marking the glaucoma, but they are still very few of them. So the only help we have at this moment is that if there is a family member, then we know that his chances are more of developing a glaucoma, but true marker at this point of time is not available. Anything could be like the hemoglobin concentration in the eye, or could be the biomarker for it? नहीं, as of now it is not, and we'll be very very happy if you guys can develop something like that. अभी तो यार even sugar का marker नहीं है, which is such a common, almost 10% of Indians are having diabetes, but you have no good markers. अभी भी वो prick करके निकाल के तुम्हें blood देखना पड़ता है. तो जब वो ही नहीं आया तो फिर ये तो बहुत दूर की बात है. So first please work on that and give it to us. Any more questions? Good afternoon, sir. Myself, Samriddhi Bisht. My question to you is, how helpful or how dangerous will bionic eyes will be to us in the future? Bionic eyes, you are saying, na? Yes, sir. हाँ, so it's already developing, and they are good for people who cannot see anything. Okay, for a normal person or even person with a slightly less vision, that's not good. It's not of no use. But people who can only differentiate light and dark,
for them those things are becoming useful because they can see shapes, forms, sometimes they can even see the road. So for them, yes, it's a development in future. And we are really looking forward to stem cells because stem cells can differentiate, and we just hope to God that we'll be able to put these stem cells into the nerves, and that was the only thing which cannot be replaced, we told you. So that if those regenerate, then that will be wondrous because we can change the cornea, we can change the lens, we can do so much, but optic nerve, once it is gone, we can't do anything about it. So it's the right direction, but we are still very, very slow. Thank you, sir. चलो जी, Last two questions. हाँ बेटे. सर जब हम लेज़र सर्जरी करवाते हैं तो सर उसमें हमारी कॉर्निया के शेप और कॉर्निया के सर जो साइज़ और शेप होता है वो चेंज होता है. बिल्कुल. तो सर उसमें सर जो हमारे कॉर्निया है सर उसका सर स्ट्रक्चर भी चेंज होने का सर रिस्क रहता है. तो सर उससे सर एस्टिग्मेटिज्म होने का खतरा है. तो सर चेंज होने का रिस्क रहता है, बट दैट इज़ वाई दे आर वेरी फिक्स्ड पैरामीटर्स कि भाई इतना ही करना है. सो नाउ इट इज़ बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स. सो दे नो कि अगर तुमने 493 माइक्रॉन से पतला कर दिया कॉर्निया, उससे ज़्यादा निकाल लिया, दैट इज़ वाई वी डोंट करेक्ट मोर देन -7 डायोप्टर्स, 7 or 8 डायोप्टर्स विद दिस. ठीक है ना. सो पैरामीटर्स नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड कि किससे ख़राब होने से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर प्लेइंग विद अ नॉर्मल टिश्यू विच गॉड हैज़ मेड. So it can never be replaced, and it is a tricky business. Yes, you are very right. Thank you, sir. I think they are ready to go. So thank you everybody. I think I am really grateful for you for listening to all this. Finally, as an मेरा Our Honorable Vice Chairman, Mr. Vineet Vats sir, we will present a small memento as a token of our appreciation. मेरा सर से एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से, क्योंकि आप आई डॉक्टर हैं और ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो खुद स्पेक्स लगाते हैं और सबको एडवाइस देते हैं कि आप लेंस लगवाइएगा. कोई भी डॉक्टर्स खुद स्पेक्स मतलब लेंस नहीं लगवाते हैं. सो दोज आर जो लैजिक के स्पेशलिस्ट हैं ना, वो अपना लैजिक करवा लेते हैं बिकॉज पीपल उनसे यही क्वेश्चन पूछते हैं. बट आई एम अ ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट, सो फॉर मी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. एंड लाइक टिल 40 years of age आई डिडंट हैव एनी चश्मा. सो उससे पहले अगर वो ऑपरेशन यूजली 20, 30, 32, 34 तक ही उसका फ़ायदा होता है. उसके बाद वो लैजिक का कोई फ़ायदा नहीं है. So that was the age when it could have been done for me, but I was not. मेरे का तो खैर था ही नहीं. But a lot of people who actually don't want to get it done because of the thing which he very rightly pointed out कि भाई उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है ना. What God has made, man can never make. So वो क्या करते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेते हैं. तो सर का सवाल वहाँ पे उनको पता ही नहीं लगता कि यार इसके चश्मा है कि नहीं. For normally we say it for dental checkup, we have to go after every 6 months. So is there any rule for this for eye checkup? अब देखो, एक तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 3-4 साल के बच्चों को भी चश्मा लग रहा है. एंड प्लीज़ रिमेंबर व्हेन यू हैव किड्स, इवन स्मॉल किड्स आर नीडिंग ग्लासेस नाउ. आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग. तो विद इन 2-3 years यू शुड टेक फॉर 1 eye चेकअप. क्योंकि क्या होता है कि अगर वो चश्मा टाइम पे लगा दिया गया तो वो जो फोकस बन रहा है वो बढ़िया बन रहा है, एंड द आई विल डेवलप इन अ नॉर्मल फैशन. अगर वही चीज़ 10 साल से ज़्यादा डिले कर दी गई, बहुत से लोग होते हैं बॉदर ही नहीं करते, नहीं देख रहा है यार, वो देख रहा है, वो देख रहा है, क्या देख रहा है तुम्हें नहीं पता. वो ग्रॉस सा देख के काम चला रहा है, उसको तुम्हें नहीं पता क्या देख रहा है. पहली बार देखा तो -4 का नंबर निकला है उसका. सो द स्टिमुलस इज़ नॉट बीइंग फॉर्म्ड ओवर देयर. सो बच्चों को तो सबको ही चेक कराना चाहिए. अगर चश्मा लगा है तो हर 6 महीने में दिखाना पड़ेगा. उनके चश्मे बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं. ठीक है. वंस यू आर कम टू द स्टेबल एज ऑफ से 20s एंड ऑल, unless you have a family history, unless you have diabetes, unless you have some comorbidity like
हाइपरटेंशन कुछ तब तुम्हें दिखाना पड़ेगा, और यू आर ऑन सम काइंड ऑफ मेडिकेशन, तब तुम रेगुलरली दिखाओ. अदरवाइज वंस इन अ वाइल, वंस यू आर गोइंग फॉर योर चेक. Kids, we should start from the age of 3. यार यू वुडंट बिलीव, 4th के क्लास में तो आधे होंगे चश्मे लगे हुए हैं. सो थिंग्स आर रियली वियर्ड नाउ. एंड iPad we have realized is one which is really doing the worst thing. Somehow the other, the laptops, desktops are not that bad, but iPad पता नहीं, I don't know what the hell is happening. और हम लोग भी ऐसे ही है ना, माँ बाप भी कहते हैं चल यार तू ये पकड़ बैठ तू यार, हम अपना टीवी देख रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम. Start from the age of 2 to 3 years, okay, so everyone here, please start it. So call the name of students. Kritika, Sonakshi. All 5 students, please be in a line. Tejasvi, Khushi Sahai, Kritika and Shivam Sharma. One by one. Everybody should clap. Khushi Sahai, Tejasvi, Shivam Sharma, and Nipun Guleria. We would like to invite our Honorable Vice Chairman, Mr. Vineet Sir, to present a small memento as a token of our appreciation. I thank Dr. Harsh Kumar Sir for being such a guiding force and our esteemed panel without whom this session would not have been possible. And I present my special thanks to our management, respectable faculty and all the attendees for their patience.